آج کھولیں گے اور آج ایک ٹاپک میں سٹارٹ کروں گا. آج کا ٹاپک بڑا خاص ہے، وہ ہے بیماری کے تعلق، اس کے تعلق سے. اور یہ ساری باتیں ہم سب کو جاننا بڑا ضروری ہے. اس ٹاپک میں ہم اس سیریز کو جب ہم شروع کریں، دوسری سیریز جو شروع کی اس کو آگے لے کے چلوں گا کہ پھر وہ کنٹینیو چل چل کے پھر آپ لوگ جو ہیں وہ پھر کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات شروع ہو گئی ہے، پھر اس کو پھر اس کے بعد میں دوبارہ سٹارٹ کروں گا. اس میں بہت کچھ ہے. اب مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ عبادت میں آ رہے ہیں. آج ہم صرف بیماری کی وجوہات پر بات کریں گے. کیا کریں گے؟ بولیں بیماری کی وجوہات پر. سیکنڈ لاسٹ اس کے بعد جو اتوار ہے ہم بات کریں گے بیماری میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کئی سوال ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ ہمیں میڈیسن کھانی چاہیے، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ضرور دعا کرنی چاہیے. کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، پھر ہماری گفتگو بیماری میں کیسی ہونی چاہیے، ساڈا ایمان بیماری سے کس طرح ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں نیکسٹ سنڈے میں ہوں گی. ٹھیک ہے. آج اس سنڈے میں آج کے اتوار کی عبادت میں کیونکہ اتنا محدود وقت میں ہم ایک ہی بات کو جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کیجیے. کوئی بات نہیں، تھوڑا پیچھے چلے جائیں. ہم نے بچوں کو خدا کے در سے خدا کے کلام کو ہم کھولتے ہیں. خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولا جاتا ہے. اور آج ہمارا ٹاپک ہے بیماری کے بارے میں بائبل کی تعلیم. کیا عنوان ہے؟ بولے بولے بیماری کے بارے میں بائبل کی تعلیم. اور آج ہمارا جو خاص عنوان ہوگا وہ بیماری کی وجوہات کے اوپر ہوگا. ہم بہت سی وجوہات پر غور کریں گے. سب سے پہلے حوالہ نکالیے احبار کی کتاب، اس کا 26واں باب، اور ہم اس کی 16 آیت کو خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. احبار کی کتاب اس کا 26واں باب اور 16ویں آیت کو میں پڑھوں گا. آپ بھی میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھیں گے تاکہ یہ جو کلام کا پیسج ہے اس پر ہم غور کر سکیں. احبار کی کتاب اس کا 26واں باب اور 16ویں آیت. کیا لکھا ہے یہاں؟ تو میں بھی تمہارے ساتھ اس طرح پیش آؤں گا. کیا کروں گا جی؟ کہ دہشت یعنی بخار، تبدہ کون بخار کو تم پر مقرر کروں گا. کیا کروں گا؟ کبھی کبھی نہیں، لکھے گا ہی نہیں. کیا کروں گا؟ جو تمہاری آنکھوں کو چوپٹ کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ جو تمہاری آنکھوں کو اور تمہاری جان کو گلا ڈالیں گے، اور تمہارا بیج بونا فضول ہوگا. کیا ہوگا؟ تمہارا بیج بونا کیا ہوگا؟ کیونکہ تمہارے دشمن اس کی فصل کھائیں گے، اور میں خود تمہارا مخالف ہو جاؤں گا، اور تم اپنے دشمنوں کے آگے شکست کھاؤ گے، اور جن کو تم سے عداوت ہے وہی تم پر حکمرانی کریں گے. کیا کریں گے؟ وہی کیا کریں گے؟ تم پر وہی تم پر حکمرانی کریں گے. اور جب کوئی تم کو رگیدتا بھی نہ ہوگا تو تم بھاگو گے. کتاب مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہے. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیں گے. میں کلام کے پیسز کے اندر نہیں جاؤں گا، لیکن ہم نے چند بیماریوں کو پڑھا. اور بیماری کی سب سے جو آپ دیکھیں، بیمار ہونا کوئی بری بات نہیں. پہلے چند مائنڈ اپنا سیٹ کریں. بائبل مقدس میں خدا کے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ بولے بولے. پچھلے اتوار چرچ کے بعد میں بھی ڈیوٹی لگوا تھا، کامرا جی گیا. پچھلے سنڈے جب چرچ کے بعد میں خود ڈیوٹی لگوا کے آیا ہوں. تو بیمار ہم ہوتے ہیں، میں بھی بیمار ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں ہوتے ہیں آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے. اچھا، بائبل مقدس میں چلے یوسف کا باپ یعقوب بیمار ہو. کیا ہو گیا؟ دیکھیں، یوسف کو کسی نے بتایا تیرا باپ کیا ہے؟ بیمار ہے. یوسف یعقوب کون ہے؟ اسحاق کا بیٹا، 12 قبیلوں کا ہے.
मोजद इसराइल कहलाने वाला हिजकिय्याह बीमार हो गया। नए अहदनामा में मैं बीमारों की बड़ी लिस्ट मिलती है, यानी मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो पुष्टित किरदार को क्या हो गए, बीमार हो गए। बाइबल में एक बड़ा जबरदस्त कादर बीमारी से मर गया, मर्द खुदा निशा, जबरदस्त मसा वाला खादिम है। इस वजह से अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जरा समझना है। मैंने पाकिस्तान के अंदर अपनी कुकड़ी ते अपनी रोटी सीधे करने दे विच ना बड़ी गलत सीना में तो सुनिया में। याद रखिएगा, खुदा का कलाम खुद अपनी तफसीर करता है, उससे मेरी स्टोरियों की जरूरत नहीं है। क्या है? उससे मेरी कहानियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम अपनी तफसीर खुद करता है। और मुतवाज़न तफसीर वही होती है जिसके अंदर दोनों पहलुओं पर गौर किया जाए। आज हम चंद बातों पर गौर करेंगे, फिर कई सवाल अगर आपके माइंड के अंदर होंगे तो आप जरूर उसको डिस्कस कर सकते हैं। बाद में हम इतवार की इबादत में उनको जो है वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, उनको बेहतर तौर पे कलाम में से समझ सकते हैं। तो पहली वजह नोट कीजिएगा, बगावत बीमारियों की वजह बनती है। क्या? बगावत। जब हम बगावत करते हैं खुदा के साथ, क्या करते हैं? बगावत वो बंदा करता है जो खुदा की हुजूरी में रहने वाला हो, जो दुआ करने वाला हो, जो प्रस्तिश करने वाला हो। एक बंदे की गल नहीं हो रही। बगावत हमेशा वही करता है जो ताबेदार हो, जो फरमाबेदार हो। तो पहली बात, जब हम बगावत करते हैं तो चंद बीमारियां जो है खुदा कहता है फिर मैं आएगी नहीं, मुकर्रर कर दूंगा। कलाम में लिखा है ना, खुदा का क्या वादा है। खुदा ने ये नहीं कहा कि बीमारी के लिए तेरे बीच में बीमारी आएगी पर रहेगी नहीं, आएगी पर, क्योंकि बीमारी का आना एक हमारे जिस्म में होने का साइन है। क्या है? लेकिन जब मुकर्रर हो जाए, क्या हो जाए? जब ठहरा दी जाए, और मुकर्रर होने का मतलब है जहां मेडिसिन बेअसर हो जाए, जहां कोई मेडिसिन आप परफेक्ट ना करे, उसका कंपैक्ट आपकी जिंदगी के अंदर ना हो। तो इस बात को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, बगावत बीमारियों की वजह बनती है। क्या बनती है? दूसरी वजह नोट कीजिएगा, दूसरी वजह खुदा के कलाम की नाफरमानी। क्या जी? कुछ ही बोलो। खुदा के कलाम की नाफरमानी। इस्तशना की किताब जब आप खोलते हैं, उसके 28वें बाब को खोलते हैं, तो ऊपर ये चैप्टर जो है ये बरकतों से शुरू होता है। लेकिन जहां खुदा का कलाम बरकतों की बात करता है, इस बात को समझ लीजिएगा कि जहां खुदा का कलाम ये कहता है कि जो कोई ईमान लाएगा वो क्या करेगा? निजात पाएगा। कलाम ये भी कहता है जो नहीं लाएगा वो मुजरम ठहराया जाएगा। क्या होगा? जो ईमान नहीं लाएगा वो मुजरम ठहराया जाएगा। इस्तशना की किताब उसका 28वें बाब में जब आप पूरे ऊपर के चैप्टर को देखते हैं तो आपको बहुत सी बरकतों का जिक्र मिलता है। लेकिन वहीं पर उसकी 22वीं आयत के बाद एक और सिलसिला शुरू हो जाता है, और वो जो सिलसिला शुरू होता है, यहाँ पर जिनके पास खुदा का कलाम है एक एक वर्ष पढ़ने में आप मददगार हो सकते हैं, क्योंकि सबको चर्च में हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं। 22 आयत कोई भी पढ़ने में, नौजवानों के पास बाइबल में नहीं है। कासिम 22 आयत से क्या लिखा है? इस्तशना उसका 28वां बाब और 22 आयत। खुदावन तुझको तब तक तपेदिक और बुखार और सोजिश और शदीद हरारत, क्या दी, और तलवार और गरोई से मारेगा, और ये तेरे पीछे पड़े रहेंगे। कहते ना छटदियां ही नहीं बीमारियां हैं। तो वही जब हम कलाम के नाफरमान होते हैं तो फिर पीछे कहीं रहेंगी, हाँ, पीछे पड़ी रहेंगी जब तक तो फला ना हो जाए, मर ना जाए। आगे 23 आयत। और आसमान जो तेरे सर पर है भीतर का, और जमीन जो तेरे नीचे है क्या हो जाएगी? और कोई पढ़े 24 आयत।
सिकंदर डाला आपने? हाँ, मेरा पुत्र खड़ा होके पास। जब शायद खुदावन मींह के बदले तेरी जमीन पर क्या करेगा? खाक और धूल बरसाएगा। और तो 25 आए, खुदावन तुझको तेरे दुश्मनों के आगे क्या करेगा? आगे सताइस साल की तरफ आ जाए। इसके अंदर खुदावन तुझको क्या, खुदावन तुझे मिस्र के घोड़ों और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा, ये गल्ला हो रही है ना, अच्छा ना ही होएगा। बीमारी की बात नहीं हो रही, यानी बीमारी आ गई तो कभी तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, यानी ऐ हो रही है तो रहेगा। कोई मेडिसिन तुझ पर असर नहीं करेगी, कोई डॉक्टर की विजडम तुझ पर काम नहीं करेगी, ठीक है। और यहाँ पर चंद बीमारियों के नाम आपके सामने हैं। खुदावन तुझको मिस्र के घोड़ों और बवासी और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी अच्छा नहीं होगा। खुदावन तुझको और दिल की घबराहट में, कईयां की घबराहट नहीं सही होगी, होनी भी नहीं। और जैसे अंधा अंधेरे में टूटता है, वैसे ही तू दोपहर को टोलता फिरेगा और तू अपने सब धंधों में नाकाम रहेगा। क्या रहेगा? सब जरा भी काम करेगा ना, कट के तेरी किस्मत होएगा। हैं? तू 24 घंटे काम करन तो बाद भी ना तू इंज ही करेगा, इंज कभी नहीं होएगा। और मैं बहुत से लोगों को देखा, वो 24 आवर काम करने के बाद वो उनके गुफ्तगू के अंदर रोना होता है। उनकी गुफ्तगू के अंदर जो है वो सिर्फ कहने का मतलब ये है, नहीं अभी बड़े पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 30-30 हजार रुपए रेंट पे भी रह रहे हैं और उनके चेहरे की स्माइल को छोड़ नहीं सकता। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाते, तो इतना अफसोस करने के बाद अपनी जरूरियात पूरा नहीं कर पाते। ओके, सेकंड कलाम की नाफरमानी क्या है? पहला क्या था? बगावत। सेकंड कलाम की। थर्ड, जब गुनाह के सबब से क्या जी? बीमारियां क्या है? गुनाह का सबब भी बीमारियों का बाइस बनता है, ठीक है। दूसरा सैमुअल उसका 12 बाब की 15 आयत में हम जानते हैं कि दाऊद बादशाह जो था उसने हत्ती ओरिया की बीवी के साथ मुबाशरत की, ज़िना किया और उसके अमल में एक बेटा पैदा हुआ। क्या हुआ? और वो बेटा क्या हो गया? बीमार हो गया। क्या हो गया? अब जो उसके पीछे स्टोरी थी वो गुनाह वाली थी। क्या थी स्टोरी? क्या थी? और जो स्टोरियां गुनाह वाली होती हैं वो कभी भी वो बादशाहों में जो मर्जी चले जाएं उनकी शिफा नहीं होती। कई दफा क्योंकि आजकल हीलिंग का काम बहुत जरूरी है और इस टाइम ये बड़ा अच्छा आदमियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि लोग जो है वो कलाम नहीं सुनना चाहते, वो चर्च को क्लीनिक समझ के आना चाहते हैं। चर्च के अंदर वो पादरी को डॉक्टर समझना पसंद करते हैं, उसको खादम नहीं समझना चाहते, क्योंकि खादम के मुंह में मार्फत होती है। क्या होती है? उसके मुंह में कलाम है, उसके मुंह में अच्छी बातें हैं। पादरी साहब वो बहुत से लोग जो हैं आज वो आप देख लें, ये जरूरी है, मैं मिनिस्ट्री के खिलाफ नहीं हूँ कि मेरी अपनी जिंदगी मौजाद से भरी पड़ी है और खुदा जो है वो हम जब बैठ जाते हैं तो हम इस पे काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। हीलिंग के ऊपर हम आधा घंटा लगाते हैं, लोग मोज़े पाते हैं, शिफा पाते हैं, लाइन लगी होती है दुआ में। लेकिन मसला ये नहीं है। लेकिन जो बात जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ वो ये है कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है, अपनी रूहानी हालत पे ज्यादा फोकस करना है। क्या करना है?
अपनी रूहानी हालत में सिर्फ यहाँ तक नहीं देखें, ये मिनिस्ट्री यहाँ तक नहीं है हीलिंग मिनिस्ट्री कि लोग शिफा पाए और चर्च के बाद चले जाएं। इसका मतलब है कि लोग आसमान की बादशाही के तैयार हो, इसलिए खुदा हमारी जिंदगी में मौजज़े करता है। आमीन। ठीक है, क्यों मौजज़े करता है? ताकि हम खुदावन के पास आए। अगर किसी फैमिली में मौजज़ा होगा तो वो चर्च भी आएगी और रफाकत भी रखेगी। अगर वो रफाकत नहीं रखती, चर्च नहीं आती, तो याद रखिएगा फिर वो बात पूरी होती है कि हमने तेरे नाम से ये किया, हमने तेरे नाम से, क्योंकि बादशाही के लिए तो काम बना ही नहीं है, इसलिए कलाम में लिखा है। तो दूसरी वजह हमें नजर आती है कि गुनाह वाली स्टोरियां बीमारियों की वजह बनती है। बोले ओके। चौथी वजह जो हमें नजर आती है खुदा के कलाम में, जब हम खुदा की राहों पर नहीं चलते, क्या है? जब हम खुदा की राहों पर, दूसरा तवारीख 21 बाब की 15 आयत, जल्दी से कोई पढ़ने में मददगार हो। दूसरा तवारीख 21 बाब की 15वीं आयत को जल्दी से, और मुझे अच्छा लगेगा कि भाइयों में से कोई, नौजवानों में से। हाँ मैथ्यू। ओके, तो अंतरियों के किसके सबब से? एक बादशाह को कहा गया था तो अंतरियों के मर्ज के सबब से क्या हो जाएगा? आगे यानी ऐसी तुझे बीमारी लगेगी, तेरी अंतरियां जो है रोज रोज क्या होगा? निकलती जाएगी है। आगे ओके, अब एक बादशाह का जिक्र है और इसने क्या किया? इसने खुदा की राहों पर चलना ना चाहा। क्या ना किया इसने? बोले बोले खुदा की राहों पर चलना, और उसका रिजल्ट क्या बना कि खुदा ने कहा मैं तुझे अंतरियों का मर्ज लगवाऊंगा। क्या करूंगा? अब हमने बाइबल में कई मर्जों के नाम सुने अभी जो आजकल भी दरपेश है, ठीक है। हमने बुखार का सुना, कहीं एक लंबी लिस्ट है कलाम में मर्ज के बारे में। ओके जी, अब ये चौथा पॉइंट क्या है? पहला हमने क्या सीखा, रिवीजन हम करते साथ जाएंगे, ठीक है। टीचिंग पहला क्या है? अथान चौके एंड फिंगर ना, पहला क्या है? एंड एंड अब मेरे लिए देखो, क्योंकि कई एंड गुमसुम होके बैठे हैं, इतना फिर उन्होंने होला हां एंड संडे स्कूल को कितना? पहला वन, सेकंड, थर्ड, गुनाह वालियां कहानियां। आगे चौथी, जब हम खुदा की राहों पर नहीं चलते, क्या नहीं करते? और जब हम चर्च में बैठे होते हैं तो लीड करने वाला बच्चा भी है ना, अब बात को माना करें, ठीक है। अब तुम कहते हैं ना हाथ उठा के दुआ करें तो उसमें बरकत होती है, ठीक है। कई दफा मौजे ना हमारी दुआओं में नहीं होते, नमाज खोड़ी की फर्मा बेदारी में मौज आता है। और बहुत सारे लोग इसलिए बरकत नहीं पाते, उनको ना लोग अपनी जगह देते किसके रहने। तो मुझे बताएं, अगर आप खुदा के घर में फर्मा बेदारी नहीं करते तो भाई जाके क्या करें? ये फर्मा बेदारी का शुरू जो है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी जिंदगी में। आमीन। ओके ओके जी, आगे हम चलते हैं। 4 पॉइंट पर हम यहाँ पर आए हैं, ठीक है। ओके। 5वां पॉइंट हमें जो कलाम में नजर आता है, जब हम कुछ बीमारियां जो हैं वो बुढ़ापे का सबब भी बनती हैं। क्या बनती हैं? एज द सबब भी बनती है, ठीक है। निकाले वाइज हम ये, क्योंकि वाइज की किताब मेरे साथ निकाले और यहाँ पर आपको चंद फैक्ट नजर आएंगे बुढ़ापे के, ठीक है। यानी कुछ चीजें आपका बुढ़ापा, जब आप एज आपकी ज्यादा होती है तो फिर कुछ चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं? बोले 12वें बाब की हम पहली आयत से, और मैथ्यू पढ़ेगा, ठीक है। मैथ्यू निकालो, अब कोई नहीं पढ़ेगा, खड़े हो जाओ। 12वें बाब क्या लिखा है? और अपनी जवानी के दिनों में, सब जरा बाइबल पर नजर दिखाइए, 12वें बाब की पहली आयत में, अपने अपने खालिक को कि जब के बुरे दिन हनूज आगे
हम्म और बादल बारिश के बाद फिर जमा। अब देखें जरा, पहला साइन क्या है? जिस रोज घर के निगाहबान थरथराने लगे, क्या करें? एक बुढ़ापे की कंडीशन है, हाथों में क्या आ जाती है? राहत, कपकपी, कोई भी चीज पकड़ेंगे क्या होगा? बोले, टेक्निकली एक फैक्ट है बुढ़ापे का, ठीक है। आगे, और जिस रोज घर के निगाहबान क्या करें? और जोरावर लोग क्या हो जाए? यानी बड़े जो हाइट वाले बुजुर्ग जो होते थे वो क्या हो जाते थे? स्टिक लेके, और यानी ये क्या है? एक बुढ़ापे का साइन है। क्या है? जिस रोज जोरावर लोग कह रहे, जेडे भाई चार चार बंदे है कोई समझते ना सर, अजो की ने वो स्टिक के सहारे आगे हुए और क्या हो गया? सीधा खड़ा होना क्या होना हो गया? मुश्किल हो गया, टुकड़े हो जाए। आगे, ओके, क्या जी? पीसने वाली कौन? डांस पीसने वालियां, क्योंकि वो डगडुग गई है, ये साहब नाल है, टीथ रे नहीं है, तो पीसने वाली क्या हो गई? ये एक बुढ़ापे का साइन कलाम हमें बताता है। कई दफा जो है वो टीथ जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं, एक पूरी। और आगे, और वो जो खिड़कियों से झांकती है आंखें, यानी कई दफा ये जो वीकनेस होती है, आई वीकनेस, वो एज का फैक्ट भी होता है। क्या होता है? बोले, एज का, के झांकने वाली धुंधला आ जाए। बोले, हाँ, यानी वो सही नजर, अगर आप बढ़िया साफ है नजर नहीं आ रहा। आगे, और गली के कबाड़े क्या हो जाए? यानी कान, लिसनिंग। जेड़ा बंदा कहना मतलब है वे कि वो पैरा दी आहट उठ जाता है, गली के कबाड़े क्या हो जाए? बंद हो जाए। यानी आप सुनना वाला काम जो है, और जब गली के कबाड़े बंद होंगे तो क्या होगा? आगे, बोले बोले, इसी मैथ्यू, चक्की की आवाज क्या हो जाए? चक्की की आवाज कितनी होती है? जब आप सही नहीं सुन पाएंगे तो उसकी आवाज क्या आपको लगेगी? शोर आपको क्या लगेगा? ऊंचा है। एक दफा ये जरूरी नहीं होता कि कोई शख्स बीमार है तो बुढ़ापे के अंदर जब हम होते हैं तो कई दफा हम ऊंचा सुनना शुरू हो जाते हैं। हमें करीब आके फिर क्या होता है, जरूरत होती है सुनने की, कोई हमारे करीब आए और वो बोले हैं तो हम उसको लिसन कर सके। आगे क्या लिखते हैं? हाँ, इंसान चिड़िया की आवाज से, आप एक वक्त होता है कि जब आप बहुत ज्यादा एज में चले जाते हैं तो फिर कोई मतलब हल्की जी भी तो बंदा उठ पैंदा है, और जब बंदा सही अपने जोबन में होता है या और फिर उन्होंने हला हला के है, बंदा सोची पै जाता है उठेगा कदों है जी सही। लेकिन एक क्या वक्त आता है कि आप सोना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन वो फैक्ट ये होता है कई दफा, ठीक है, इंसान एज की वजह से बहुत सी चीजों का क्या हो जाता है। और नगमा की बेटी, सब बेटियां, और वो चढ़ाई से भी, और दहशत, यानी एक बंदा जो थोड़ी सी चढ़ाई आ जाए एज के हिसाब से इंसान की कुव्वत कम हो जाती है और थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़े तो वो बंदे को ना केटू के पहाड़ तो कम नहीं होता है, वो बड़ा जोर लगा के और फिर एफर्ट करके आपको जो है वो हो जाए, ठीक है। और क्या लिखे फिर? अच्छा, अब तो कलरिंग कलरिंग सिस्टम आ गया ना, तो ये बादामों वाला कंसेप्ट नौजवानों को अब नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जेडे पिंडा थावां दे लोग ने, बाबों जो बुजुर्गों का कलर होता था पहले वाइट होता है, फिर एक के साथ क्या हो जाता है? सनहरी। आपने शायद एक्सपीरियंस किया हो बुजुर्गों का, है मेहंदी कलर है ना, सुनहरी हो जाता है, बादामों वाला कलर, ठीक है। इसके बाद एक और कलर आता है, पहले वाइट, वाइट के बाद एक और कंडीशन आती है इस्लाम के मुताबिक, वो है अब मेहंदी या बादामी इसको कह सकते हैं। टिड्डी एक बोर्ड मालूम हो, क्या हो जी? टिड्डी का की वजन है?
پر انسان اس قدر ویکنس کے اندر چلا جاتا ہے کہ ٹڈی کا وزن بھی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اور کیا لکھا ہے؟ اور خواہش ایک وقت آتا ہے خواہش مٹ جاتی ہے اور انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا. یعنی جب انسان اپنے ایج کے اس حد کے قریب ہوتا ہے تو کچھ چیزیں اس کو افیکٹ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, پورا بدن افیکٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئز بھی افیکٹ ہوتی ہے, آنکھ بھی افیکٹ ہوتی ہے, صحت بھی افیکٹ ہوتی ہے, چلنا بھی افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی قوت مدافعت بھی افیکٹ ہوتی ہے. تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کیونکہ ہم بائبل کی پوری تعلیم کو فالو کریں کہ بڑھاپا بھی آپ کے وقت کے ساتھ بہت سی ویکنس اور بیماریوں کا باعث بنتا ہے. کیا ہے بولے بھائی دی آواز آئے؟ بڑھاپا اور ویکنس کا یا بیماریوں کا یا کمزوریوں کا کیا بنتا ہے؟ ایج کے ساتھ باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے, کئی دفعہ ہم وہ اچھا کئی نا بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے, کئی دفعہ ہم مانتے نہیں ہیں نا چیزوں کو, مان لو یار کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ پادری صاحب ذرا پہلے والا ذرا صحیح سی نہ وہی کرنے ہیں, بھائی سب ذرا دعا کرو نا ذرا ہے. اور بھائی دعا ہم ضرور کریں گے آپ کے لیے, لیکن آپ کلام کے اندر رہیں کہ آپ کو طاقت نہیں لے سکتے جو آپ کو کبھی کچھ سال پہلے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ دل کا گھبرانا یہ چیزیں ایز اٹ ہے, اس کو مان لیں اور اس شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے آخری اختتام کی طرف جائیں. ہمیں اگر خدا آپ کو لمبی ایج دیتا ہے تو آپ بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ سچائی کو مانتے ہوئے یہ ساری چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بدن کا حصہ ہے. اوکے جی, یہ تھا کون سا پوائنٹ؟ پانچواں. چھٹا پوائنٹ جو ہے, جدوں مسیح خدا دی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے. یعنی بیماری کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ گناہ میں پاکیزہ لینا. کیا ہے گناہ میں؟ پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی پہلا کرنتھیوں کے اندر یہ حوالہ آپ کو ملے گا اور ہم اس کو پڑھتے ہیں ہر دفعہ کہ تم میں بتھیرے کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے. میں کی بیٹھ گئے, بہت سے کیا ہیں؟ کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے ہیں. یعنی آپ کو کلام یہ بتاتا ہے کہ جدوں کوئی بندہ پاک شان درست طریقے نال نہیں لیندا تو اپنے اوتے کی پیدا کرتا ہے؟ بیماری, اپنے اوتے کمزوریاں پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا تھا, اس کے پیچھے لوجک کیا تھی؟ کیونکہ کلام میں اگر آپ کسی بات کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں اس کی ہسٹری معلوم کریں. آپ کو کلام کو پڑھیں, آپ کو جب آپ لکھا ہے پروس ایک جگہ پہ گیا, اس کا نام غالباً کرینے کے اندر تھا یا مجھے لوکیشن یاد نہیں ہے. پالوس رسول نے لکھا جب وہ شہر کا وزٹ کر رہا تھا اس سے ایک قربان گاہ ملی. کیا ملی؟ اس کے اوپر کیا لکھا گیا تھا؟ نام معلوم خدا. کیا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر؟ کیونکہ جب آپ منادی کرتے ہیں تو منادی کے دوران, کیونکہ آج مشن کی بات تو بڑی ہوتی ہے لیکن مشن کے اصولوں کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ مشن پہ ہم کام کیسے کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلے جہاں پر مشن ہوتا تھا پہلے اس شہر کی چاروں طرف جو تھی وہ دعائیں کی جاتی تھی, اس کی حدود بندی کی جاتی تھی. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ نامعلوم خدا, کون سی قربان گاہ ملی؟ نامعلوم خدا. اب اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی, میں تھوڑا سا آپ کو پیسز ذرا دینا چاہتا ہوں. کہا جاتا ہے شہر کے اندر ایک وبا آ گئی. کیا گئی؟ ہسٹری بتاتی ہے. اور یہ وبا کیا تھی؟ جب وبا آئی انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے اپنے معبود کے آگے, میڈیسن کوئی اثر نہیں کر رہی تھی, انہوں نے کیا کیا, اپنے اپنے معبود کے آگے قربانیاں گزارنا شروع کی. جس طرح ہمیں ملتا ہے جب طوفان آیا تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے اپنے معبود کو پکارا, جو جو کچھ ان کے پاس تھا اس کو نذرانہ بھی دیا. انہوں نے کہا ہن ساڈا معبود نہیں کام کردا, سٹے نوں کھاؤ. تو یہ کو اٹھایا ہے نہیں کر لا بھائی, ساڈی تے نہیں سنی جا رہی ہے. تو ایز اٹ آپ سمجھ لیجیے. اب قربانیاں دی وبا نہیں رکی, لوگ مر رہے تھے. کسی نے خیال کیا کہ ہو سکتا کوئی ایسا بھی خدا ہو جس کو ہم نہ جانتے ہیں, وہ ہمارے خلاف ہو. یعنی ایک خیال پیدا ہوا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک نامعلوم خدا لکھا اور اس کے آگے قربانیاں گزارنا شروع کر دیا. جمیل بھائی بار ہوگی. اچھا وہ تختی وہی لگی رہ گئی, تختی وہی رہ گئی. اب پلوس جب گیا اس نے اسی ٹول کا استعمال کیا جو تھا,
اس نے کہا آپ کو پتا ہے، یہ میں بتاتا ہوں یہ نامعلوم خدا کون تھا، یعنی ہسٹوریکل یہ نامعلوم خدا کے بارے میں بتاتا ہوں، جس نے وبا کو روکا تھا اس کا مجھے پتا ہے۔ اب لوگ متوجہ ہو گئے، لوگ اس کی طرف آئے۔ اب کرنتھس کی کلیسیا جو تھی، آپ سمجھ لیں کرنتھس کی کلیسیا جو ہے آج کی کلیسیا کے ساتھ یہ بڑی ملتی جلتی ہے، کیونکہ کرنتھس کی کلیسیا جو تھی یہ بڑی تیزی سے بڑھنے والی کلیسیا تھی، لیکن اس کے اندر بڑی مسئلے تھے۔ اس کلیسیا کے اندر دعا بھی ضرور تھی، لیکن اس کے اندر شرارتیں بھی بڑی، یہ ہر چیز کو روحانی ضد سمجھ لیتی تھی۔ یہ کلیسیا کیا کرتی تھی، یعنی ہر بندہ خدا دے کام تو زیادہ اپنے آپ کو زیادہ فوکس کرتا پیا سی اس کلیسیا۔ اسی لیے دیکھیں باقی کلیسیوں میں بھی غیر زبانیں بولی جاتی تھی، اس کو پورا چیپٹر لکھنا پڑ گیا۔ کیوں لکھنا پڑ گیا؟ یعنی اس نے غیر زبانیں بولنے سے منع نہ کیا، اس نے ڈسپلن کے خلاف بات کی، کیونکہ کئی دفعہ لوگ ڈسپلن کو کلام سمجھ لیتے ہیں۔ بھائی اس کلیسیا کا ڈسپلن خراب تھا، جہاں ڈسپلن نہیں ہے اس کو صحیح کریں، لیکن کلام کے کسی بات کا انکار نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ اس کو آپ صحیح طریقے سے کر لینا، جس طرح کلام کہتا ہے، آپ منفی تو نہ ہو جو لکھا گیا خدا کے کلام میں۔ اب کرنتھس کی کلیسیا کی سٹوری یہ ہے کہ اس میں جلد کی بیماری پیدا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اور ایسی بیماری پیدا ہوئی، یہ بیماری باہر کے بدن نہیں لگ رہی، یہ بیماری کلیسیا کے لوگوں لگ رہی، دعا کرنے والے لگ رہی۔ بیٹھ کے جھک گئے۔ پھر پلوس نے اس بات کو بتایا کہ بھائی تم میں سے بتیرے ایسی بیماری تو مر بھی گئے نے، کہ انہوں نے توبہ کرنا نہیں چاہیے، یعنی پاکشاہ بھی شامل ہوتے رہے ہیں لیکن نامناسب طور پر۔ کیا جی؟ اس لیے جب ہم خداوند کے مسا کو، خداوند کی حضوری کو، پاکشاہ کو، مقدس چیزوں کو اپنی ناپاک زندگی میں ان کی قدر ناپاکی میں رہیں گے اور پاک چیزوں کی تلاش میں بھی رہیں گے، تو ہم بہت سی بیماریوں کا باعث ہماری زندگی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید جوفا پینے سے کوئی بیماری، بھائی بات یہ ہے کہ کلام ہم آپ بات پیتے ہیں سب سے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ آپ کو پاکشا جوفا پینا بیمار نہیں ہو گے، ایک گناہ نہ پینا بیمار ہو گے۔ کتنا آپ پرہیز کرنا نا، تو جوتے تو نہ پرہیز کرو، گناہ تو کرو، گندیاں گلاں تو کرو، گندے رویے تو کرو، ہے اپنے بیڈ رویے سے کریں۔ ٹھیک ہے؟ اور ٹاپک نہیں ہے، کون سا پوائنٹ تھا ہمارا؟ چھٹا، 7واں پوائنٹ جلدی سے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کی 4 آیت کے اندر یسوع کا دوست بیمار ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ تو لوگاں بڑے تانے دیتے ہیں، لوگاں بڑے، یسوع نے بڑیاں گلاں کی تھی، وہ نے ہوراں نوں زندہ کیتا ہی اپنے دوست نوں پتہ ہی نہیں۔ آج بھی خدا کا بندہ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو کئی سوال پیدا ہوتے ہیں، پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح نے کہا کئی بیماریوں کی وجہ خدا کا جلال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کئی بیماریوں کی وجہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کا، یعنی کئی دفعہ خدا اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے ہماری زندگیوں میں دوائیاں رکھنے کے لیے، اور میں بین صفیہ کی اور جمیل کی دوائی، ہمارا ایک بچہ ہاسپٹل میں داخل ہے، اس کے ساتھ شیئر کر رہا تھا ٹیسٹامونیز، کیونکہ گوائیاں جو ہیں وہ کبھی کبھی خدا ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ خدا اپنی قدرت کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کر سکے۔ اور کون سا پوائنٹ بن گیا؟ 7۔ اچھا کبھی کبھی نا خدا ہمیں شفا نہیں دیتا، اس لیے یہ مت گلا کریں کہ خدا مجھے شفا نہیں دے رہا، یہ مجھے خدا دے رہا، کنہاں نوں نہیں دینی، کوئی کچھ وجہ بھی ہے، نہ دینے کی وجہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب میں بہت اس کے پیچھے بیمار ہم کیوں ہوتے ہیں میں نے وجوہات بیان کی۔ نیکسٹ سنڈے میں ذرا اس اذیت اور تکلیف کے عمل پر بات کروں گا، رویے پہ بات کروں گا کہ رویہ کیا ہوگا، ہمیں اب بیماری میں کیا سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں بیماری میں کیا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کرنتھیوں 12ویں باب کی 7 آیت، ذرا یہ پیسز پڑھ لیں پھر ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 7 آیت، اور مکاشفوں کی میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبویا گیا۔ کیسے کیوں چبویا گیا؟ کدی کدی نا ساڈے اندر روحانی گمان آ جاتا ہے، کدی کدی اسی نا بہت زیادہ وڈیاں وڈیاں گلاں کرن لگ پیندے ہیں، تے خدا کدی کدی ساڈی ٹوٹ کڈن واسطے کی کرن واسطے
अरे नहीं ना जानते कई दफा सी है ना, ठीक है। तो कई दफा हम खुदा की नेमतें लेके कई दफा कई बीमारियां खुदा ने कई कंधे रखे ने, ठीक है। पंजाबी च कहते ने वो जिवें गुब्बारे च की करना हवा कड्ढनी ओहदे की कीता जांदा है, टायर पेंचर पेंचर है, पेंचर समझ लो। तो और मजे की बात यह है कि जब बंदा घमंड में होता है, गुरूर में होता है ना, ठीक है, तो उसकी दुआएं भी जो होती है ना वो कोई और डायरेक्शन में होती है। क्या होती है? शुक्रगुजारी भी किसी और डायरेक्शन की होती है। क्योंकि घमंड वाली दुआ आपको नजर आएगी ना, कल में दो आदमी क्या करने चले थे, एक फरीसी था और एक क्या था, मसूल लेने वाला। फरीसी क्या कह रहा था, यानी कई दफा हम दुआओं में अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? बेहतर साबित करने की। यानी कई दफा हम दुआ इसलिए नहीं कर रहे होते, इसका कोई ताल्लुक खुदा के साथ होता है, इसका ताल्लुक कई दफा हमारे साथ होता है। और मुझे अफसोस है इस बात का कि चर्च दुआ करना नहीं सीखा। क्या नहीं करना? चर्च दुआ करना। फिर मैं कहना चाहता हूँ, तो चर्च रटी रटी दुआवां तो बाहर निकलो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ रटी है, उस तो बाद बदल नहीं नजर। अब नीचे भी है वही दुआ, ऊपर भी है वही दुआ, कहीं पे भी है वही दुआ। भाई मिजाज रवैये हर सेकंड के बाद और होने चाहिए। जब आप ना खुदावन के साथ कंटेक्ट हो जाएंगे ना, तो फिर आपकी हर दफा दुआ नहीं होगी। क्या होगी? प्रेयर रिक्वेस्ट आपकी वही है। प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं मैं कहता, प्रेयर रिक्वेस्ट को ना छोड़े। कलाम में लिखा है कि हमें अपनी दुआओं की लिस्ट को छोड़ना नहीं है। आप तो देखें, अगर आप किसी ऑफिस में दरखास्त देते हैं, उसे परसू करते हैं, तो आपको उसकी खबरगिरी करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कहीं रुकी हुई है। दानियल ने दुआ करना नहीं छोड़ी जब तक उसे जवाब नहीं मिला, ठीक है। कई दुआएं हमारी कंटिन्यू है। क्या है? ये नहीं मैं कह रहा कि दुआएं आपने वो, लेकिन जो है ना हमारी पर्सनल जो रिलेशन है खुदा के साथ, वो जरा ये। अब देखें, मैं अगर गुजरात गया हूँ तो भाई मेरी चर्च वाली दुआ जो है वो तो नहीं होनी चाहिए ना। गुजरात के लोगों की कोई और नहीं है, चकवाल के लोगों की कोई, गुजरा वाले लोगों की क्या है, तो फिर एक ही पेंडे से काम नहीं चलना। इसी तरह याद रखिएगा, अगर आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो मेरे लिए आप दुआ के अल्फाज कुछ और होंगे। सुभाष भाई के लिए दुआ कर रहे हैं कुछ, कासिम के लिए कर रहे हैं, सीजा के लिए कर रहे हैं कुछ और है। तो इसी तरह याद रखिए, हर शख्स की नीड मुख्तलिफ है, तो हमारी दुआ का जो रवैया है वो भी क्या होना चाहिए? एक एक ही नोयत के साथ हमें आगे नहीं बढ़ना। तो और मजे की गल है जे कभी कभी ना ये हालेलुया जो बंदे ना फूक निकले ना, फिर बड़ा वधिया निकलता है। घमंड निकले तो फिर बड़ा वधिया निकलता है, फिर दिलों निकलता है। कई दफा ना बंदा खुदा की शुक्रगुजारी तो कर रहा होता है, ठीक है, की कर रहा होता है, दुआ भी की कर रहा होता है, पर जो दर्द पैंदी है ना, फिर हाल नाल जो दुआ निकलती है ना, फिर अंदरों निकलती है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ सट पै के जी चीख निकलती है ना, समझ रहे हैं ना। कई बच्चे बड़े माहिर होते हैं नकल करने में, क्या होते हैं, पर जो सट पैंदी है फिर आवाज कोई और होती है, होती है कि नहीं होती। तो कभी कभी फिर खुदा चाहता है हम दिल से उससे पुकारे, क्या करें, उत्तों नहीं, तो फिर जो दिल च कदों आवाज निकलेगी, जो कांटा चुभेगा, फिर दर्द होएगी है, तो फिर अंदरों जी आवाज निकलेगी, ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रियाकारी नहीं होगी है, अंदर भी बेइंसाफी होगी। आमीन। आज हमने ये बातें सीखी कि बीमारी की वजूहात क्या है। क्या सीखा हमने? बीमारी की वजूहात क्या, बीमारी क्यों आती है, ये नेक्स्ट सवाल होगा। बीमारी के बाद कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये नेक्स्ट संडे का सवाल होगा। बीमारी के बाद गुफ्तगू कैसी करेंगे, ये नेक्स्ट हम इस पर बात करेंगे। आज हमने जो बातें सीखी हैं कि अगर बीमारी देखें, बीमारी आए पर अगर बगावत है, नाफरमानी है, अच्छा, और एक और बात, पॉइंट बड़ा खास रह गया, कुछ बीमारियां अबलीस की तरफ से भी है। क्या है? ये भी पॉइंट नोट कर लें, ये मैंने लिखा हुआ था, गरीब देख के भूल गया।
कुछ बीमारियां किसकी तरफ से हैं? लूका के मुताबिक गालबन 18वें बाब के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ये अब्राहम की बेटी थी और शैतान ने इसको 18 बरस से बंधा हुआ था। क्या किया था? और वो क्या थी? कुबड़ी थी, है सही सी, पर क्यों की बन गई थी? कुबड़ी बन गई थी। क्यों? मेडिकल उसे प्रॉब्लम नहीं थी, उससे इब्लीस की वजह से, शैतान की वजह से बीमारी के उस पर क्या था? हमला था। एक बच्ची आई गूंगी थी, तो वो पैदाइशी गूंगी नहीं थी, उस पर जो बदरू का हमला था वो क्या था? ठीक है। और नेक्स्ट संडे में चले इसी पॉइंट को आगे लेके बढ़ूंगा। मैं कुछ अपनी खिदमत के पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता, सिर्फ आपकी तरक्की के लिए या आपकी हौसला अफजाई के लिए मैं इस खास नुक्ते के ऊपर, क्योंकि मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैंने बहुत देर पहले इन बातों को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि पहले जब मैं खिदमत में आया था तो मैं भी बड़ी गीत दुआएं करता था बुजुर्ग के लिए, बीमारों के लिए, ठीक है, क्योंकि माहौल जिसमें पला था उस माहौल का असर था मुझे। लेकिन जब मैंने कलाम को समझा, फिर मुझे समझ लगा कि आपने कौन सा वेपन कहाँ इस्तेमाल करना है। बोले कौन सा वेपन कहाँ इस्तेमाल, ये टूल मुझे समझ लग गई इस्तेमाल करने कलाम। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यकीन माने, मुझे नहीं पता, चंद सेकंड लगते हैं खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करते हैं। हमें वो सब बुजुर्ग गिफ्ट आते हैं, कोई टोल तबले बाजे रहा कुछ भी नहीं, सेकंड के अंदर वो हील होकर और अपनी ब्लेस जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें फालज के पेशेंट्स आए खिदमत के अंदर, जो मेडिकली फालज उनको नहीं था। अब खादम की रिजर्वेशन जो है वो बड़ी खास है। ठीक है। मैं आपको एक और वाकया बताता हूँ क्लोजिंग से पहले। अब हमारे चर्च के अंदर, कामरा के अंदर एक बेटी है, और वो बेटी जो है वो एक्ट ऐसा करती है कि जैसे वो बुजुर्ग दिखता है। क्या एक्ट ऐसा? एक दफा कोई नया खादम आ जाए ना, तो वो बड़ा जुनूनी और वो समझता है कि शायद आज बड़ा मसला का हाजिरी हो गई है, तो वो उस बच्ची को, वो नुकसान ये हुआ कि वो फैमिली बच्चों को चर्च लाना बंद हो गया। एक्ट ऐसा है। खादम कई दफा पता नहीं किस मसागड़ बहाव में चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और फिर वो बच्चे खुदा के घरों से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। पहले वो ऐसी हालत में होते हैं, फिर जब खादम सबके सामने उनको इस तरह ट्रीट करते हैं तो फिर रिजल्ट क्या निकलता है? मैं कई सालों से खिदमत कर रहा था, और वो फैमिली चर्च नहीं आ रही। एक दो दफा आई तो उनकी ख्वाहिश थी कि पादरी साहब जो है इस मामले को लें और लीड करें और दुआ करें। कई दफा उस बच्ची ने चर्च के अंदर कलाम सुनाते हुए एक्ट किया, और मैंने जो दुआ करने वाले थे उनको कहा छोड़ दें इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, कि मेरा माइक भी पकड़ेगी, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब दूसरा तो यही आजादी की तरह दसो गिरजों बाहर काट रहा तो क्या करूं मैं? कर लिया ये दुआवा की कटे आगे। तो पूरी टीम के अंदर वो फुसर फुसर शुरू होगी। पादी साहब सेकंड मेरा रिश्ता, तो क्योंकि वो सारे दुआ करने वाले लोग थे, और वो क्या करते थे कि वो बाजू और बालों से पकड़ लेते और क्या ओह, उसको मोहब्बत से डील करना शुरू किया। एक दो बार मैंने आगे बढ़ा दिया। वो बच्ची जब शादी रही और इसी के साथ कभी उसने ना माइक की तरफ आई ना कभी किसी तरफ आई, उसको समझ लग गई ना कि जब मैं उठाऊंगी तो एक दो दफा आई, पानी की बोतल पड़ी हुई थी, उसने बेचारी ने पानी पी रहा था, उन्होंने बहुत दिक्कत, यार उसको पीने तो यार आने तो क्या हो गया, आगे आ जाएगी तूफान आ जाएगा। आई सामने, उसने पानी ले चली गई पीछे। माँ बाप दूर ही वो, यार थोड़ा थोड़ा आजादी पूछते हैं, कुछ नहीं होता, हम भी इधर है, आप भी इधर है। वादी साहब आ गए, वो कलाम सुनाने, कलाम का हवाला पड़ा, उन्हें सुनाना सुनाते है कोई ऐसी कहानी सुनानी है सब। गया और उसको बुला लिया और सर के ऊपर हाथ रख के, और वो जनाब चर्च का टाइम 1 घंटे का था, और 2 ढाई घंटे दुआ में बैठा पीछे देखता रहे, बच्चे मुझे देखते हैं बाजी की कर रहे हैं, तो कंधे को खुदा ने बोझ दिया है। फिर उस दिन मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप अपनी बेटी का मेडिकल करवाएं। क्या करवाएं? और उसका जहनी प्रॉब्लम, आस्ता आस्ता मेडिसिन देना शुरू की, और वो बच्ची जो थी वो अगर उसका ट्रीटमेंट बेहतर तौर पर चलता तो अच्छा रिजल्ट उसका आ सकता था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट नहीं चला।
اور کئی سالوں سے وہ یہی سمجھتے رہے کہ کسی نے مجھے پیٹا ہے۔ تو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کئی دفعہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، ماں پیو نے خود ہی پیٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا نہ وفادار نہ بغاوت کر رہا ہوتا ہے، نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، ایسی سٹوریوں کے پیچھے پڑا ہوتا ہے جو اولاد کے لیے برکت کا باعث نہیں ہوتی، یعنی ہوتی ماں باپ ایسی سٹوریوں میں ہوتا ہے کہ اولاد کے لیے وہ برکت کا باعث، اس لیے ہمیں بڑی وزڈم کے ساتھ کیا کرنا ہے، چیزوں کو پرکھنا ہے۔ آمین، ہیلیلویا۔ نیکسٹ سنڈے میں کچھ سائنس آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کی طرف سے جب بیماری آتی ہے یا ابلیس کی طرف سے بیماری آتی ہے، دونوں میں ہم کیا کریں گے، نیکسٹ ٹیچنگ ہوگی۔ آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے اور اپنے سروں کو ہم جھکائیں گے۔